Hello, dear children. Today we are going to begin the first lesson of your book Hornbill. The name of the first lesson is The Portrait of a Lady, and this lesson is written by Khushwant Singh. By the way, I am your teacher Deepak Juneja, and you are welcome at my YouTube channel English Kingdom. So this is the first lesson. This lesson has been composed by Khushwant Singh. So let's go to the introduction of the author Khushwant Singh, who he was. This I have collected from Wikipedia. You can see on the screen he is Mr. Khushwant Singh, and he was born in 2nd of February 1915 and died in 20th March 2014. He was an Indian author, lawyer, diplomat, journalist and politician, and he has written a beautiful composition, Train to Pakistan, and a movie also has been made on the basis of that particular novel, Train to Pakistan. He wrote in 1956, and he was awarded the Padma Bhushan in 1974. However, he returned the award. This we have nothing to do, only we can see that two awards have been conferred to him. One is Padma Bhushan in 1974 and another one is Padma Vibhushan, that is in 2007. And have a brief introduction about him. His name was Khushal Singh. 1915 he was born in. He belonged to Punjab, and he died in New Delhi on 20th March of 2014 at the age of 99. And he has been a lawyer, journalist, diplomat, writer and politician. And let me tell you that he was a regular writer in Hindustan Times and Times of India, which are the prestigious newspapers of our country. So let's go back to the lesson. This lesson has been composed by Khushwant Singh. Some of the expressions are there at the beginning of the lesson, which you would be better understanding when you read the lesson. Otherwise, in isolation, it is very difficult to understand them. So let's go and let's begin the lesson. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. So let me say you very clearly that from the very first line, you have to be very vigilant about very long question from this particular lesson. The question is, write the character sketch of the grandmother of Khushwant Singh. So हमें यहाँ से फर्स्ट जो लाइन है, इसी से हमें ग्रैंडमदर के कैरेक्टर स्केच के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर सपोज टू नोट, हमें नोट करने हैं. आई वुड बी आस्किंग यू टू अंडरलाइन दोज पर्टिकुलर थिंग्स. माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर, यानी मेरी ग्रैंडमदर जैसे दूसरों की ग्रैंडमदर होती है, वो ओल्ड वुमन थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड. रिंकल्ड कहते हैं फुल ऑफ रिंकल्स. रिंकल्ड होता है आपके फुल ऑफ रिंकल्स. फुल रिंकल्स आप समझते हो, रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियाँ. तो उनके चेहरे के ऊपर भी झुर्रियाँ थी. फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, मीन्स वो पिछले 20 years से खुशवंत सिंह अपनी दादी को जानते थे, और जब से उन्होंने उसे देखा था तब से वो ओल्ड ही थी और रिंकल्ड ही थी. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. Means people said Khushwant Singh had heard that her grandmother had once been very pretty and young, and even she had a husband also. But Khushwant Singh can't believe it, because the first reason is that he has not seen his grandfather for a long time, and grandmother को उन्होंने बूढ़ा ही देखा है, इसलिए उनको विश्वास भी नहीं होता कि उनकी grandmother कभी young और pretty भी थी. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. और मेरे ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है अबाउट द मेंटल पीस. मेंटल पीस एक फायर प्लेस होता है. जनरली जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होती हैं उनमें एक कोने में लकड़ियाँ जलाने के लिए जगह बनाई जाती ताकि कमरे को गर्म रखा जा सके. उसे मेंटल पीस कहते हैं. उसी के ऊपर ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट लटका हुआ था. इट मीन्स टू से ग्रैंडफादर वाज नो मोर. ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. उन्होंने बड़ी सी टर्बन पहनी हुई थी पिक्चर के अंदर, और लूज फिटिंग क्लोथ्स थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट का मतलब हिज वाइट बियर्ड वाज वेरी वेरी लॉन्ग, and he looked at least 100 years old, means he also looked very old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. It means to say the writer here wants to emphasize the fact that his grandfather also was looking very very old in the picture. कि उसके दादाजी भी जो पिक्चर के अंदर बहुत बूढ़े दिखाई दे रहे थे. इतने बूढ़े कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उनकी वाइफ भी होगी या बच्चे होंगे. ऐसा लगा जैसे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, वाइफ और बच्चे तो होंगे. इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ ही इज़ ट्राइंग टू अम्यूज़ हिज रीडर्स.
खुशवंत सिंह अपने रीडर्स को अम्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स ऑलमोस्ट अपोजिट. जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर का सवाल है कि वो यंग और प्रिटी थी, बिल्कुल नहीं. मेरा जो विचार था वो बिल्कुल ही रिवोल्टिंग यानी अपोजिंग था, बिल्कुल अलग था. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड. ग्रैंड मदर अधिकतर उन्हें उसके गेम्स के बारे में बताया करती थी विच शी यूज टू प्ले इन चाइल्डहुड, बट दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस. अब जिन गेम्स के बारे में वो बताती थी वो काफ़ी एब्सर्ड और अनडिग्निफाइड गेम्स हुआ करते थे, जो वो काफ़ी ग्रैंड मदर काफ़ी सिंसियर लगती थी. तो ही वॉज नॉट एबल टू बिलीव, ही कुड नॉट बिलीव, उसको विश्वास भी नहीं होता था कि ग्रैंड मदर भी ऐसे गेम खेलती थी अपने बचपन में. So here what points we can extract out for the character sketch of the grandmother, that she was very old lady, and the second thing was she was so old that the writer could not believe that she had once been young and pretty. And the third thing is that she used to tell about the games which she used to play in childhood to her grandson, but her grandson did not believe on that because she looked very old and not so much energetic to play all these games. She had always been short and fat and slightly bent. अब यहाँ से जो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसमें ग्रैंड मदर के कैरेक्टर स्केच के बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे. जैसे वो बहुत हाइट में शॉर्ट थी, फैट थी और स्लाइटली बेंट थी. तो ये स्लाइटली बेंट का मतलब उनकी कमर झुकी हुई थी. फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस इस तरह से, रिंकल्स यानी झुर्रियाँ इधर से उधर, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. इधर से उधर खाली झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ दिखाई देती थी पूरे चेहरे पर. नो वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. यानी राइटर वांट्स टू से दैट कि मैंने उसे जब से देखा है, जब से मैंने अपना होश संभाला है, तब से मैंने उसे उतना ही बूढ़ा देखा है. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. मीन्स इतनी ओल्ड कि उतनी ही ओल्ड आज भी दिखाई दे रही हैं. और दिस शोज द स्टेमिना ऑफ द ओल्ड पीपल स्टेइंग अलाइव एट द वेरी ओल्ड एज आल्सो. नाउ डेज इट इज़ नॉट पॉसिबल. आज के ज़माने में तो पॉसिबल होता ही नहीं है, बुढ़ापा आने से पहले ही लोग ऊपर पहुंच जाते हैं. लेकिन यहाँ पे देखिए कि वो बुढ़ापा आने के बाद में भी 20 साल तक उतनी ही बूढ़ी थी. द राइटर वांट्स टू से कि 20 सालों से मैंने उन्हें देखा है, इतनी ही बूढ़ी दिखाई देती हैं, इससे ज़्यादा बूढ़ी तो हो ही नहीं सकती. She could have never have been pretty, but she was always beautiful. वो सुंदर, pretty पर तो उसको विश्वास है नहीं कि whether she was pretty or not, but she was always beautiful. It means to say he is pointing here towards the inner beauty of the grandmother. Grandmother की inner beauty की तरफ इशारा कर रहा है. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. This also becomes the important point for the character sketch of the grandmother. Hobbled means walked about the house, walked around the house. In spotless white means spotless white sari with not spotless white sari, spotless white salwar and kurta with one hand resting on her waist. एक हाथ अपनी कमर के ऊपर, टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप कहते हैं स्टिक को, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में होती थी माला. रोजरी कहते हैं माला और बीड्स कहते हैं मोतियों को. तो अपनी माला के मोतियों को काउंट करती, मीन्स टू से शी यूज टू चैंट द नेम ऑफ द गॉड. भगवान का नाम चैंट करती थी उस माला के ऊपर, और एक हाथ में एक छड़ी रखती थी, उसके ऊपर अपना बैलेंस बनाकर चलती. तो यू मस्ट हैव इमेजिन दैट पर्टिकुलर इमेज ऑफ द ग्रैंडमदर की इमेज आपके दिमाग में आ गई होगी कि किस प्रकार की वो औरत थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पुकर्ड फेस. हर सिल्वर लॉक्स रेफर्स टू हेयर. जो लॉक्स रेफर करता है वो बालों को रेफर करता है. लॉक्स वर सिल्वर, लॉक्स सिल्वर इसलिए थे बिकॉज ऑफ ओल्ड एज दे हैड बिकम वाइट. वो वाइट हो चुके थे ओल्ड एज के कारण, इसलिए जो लॉक्स जो थे हेयर सिल्वर थे. एंड दे वर स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे. अनटाइडली मीन्स साफ सफाई से नहीं बिखरे हुए थे. ओवर हर पेल, पेल मीन्स कमजोर. पुकर्ड फेस, विच इज पुकर्ड फेस. पुकर्ड फेस इज जनरली विद द ओल्ड एज पीपल. जब थोड़ा कमजोरी के कारण चेहरा जो है चिपक कर रह जाता है, उसे पुकर्ड फेस कहा जाता है. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. Means her lips were constantly doing the prayer, but the prayer was inaudible. Inaudible means which cannot be heard
जिसे सुना नहीं जा सकता था. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. Here the poet has used, the writer has used a simile. एक सिमिली का यूज़ किया है. उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर की तुलना की है विंटर लैंडस्केप से. लैंडस्केप कहते हैं नेचुरल सीनरी, and winter means belonging to winter season, and in the mountains means it was located in the mountain. Means he wants to say that she was very beautiful and she was so calm and so soothing. बहुत ही वो beautiful थी और बहुत ही soothing थी, यानी बहुत शांति मिलती थी उनको देखने से. An expense of pure white serenity. White serenity कहते हैं calmness को. पूरी तरह से उनके चेहरे पर शांति दिखाई देती थी. वाइट इसलिए क्योंकि वो वाइट क्लोथ्स ही पहनती थी, उनका कॉम्प्लेक्शन भी वाइट था, बाल भी सफ़ेद थे. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. पीस मीन्स शांति समझते हैं आप, कंटेंटमेंट कहते हैं सेटिस्फेक्शन को. उनके चेहरे पर पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन दिखाई देता था. सो दिस पैराग्राफ बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज फार एज द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर इज कंसर्न. Now coming to the third paragraph, my grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. So grandmother और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. माँ बाप ने उनके, खुशवंत सिंह जी के माँ बाप ने उन्हें से वहीं छोड़ दिया था गांव में ही, क्योंकि वो सिटी में सेटल हो गए थे. और they were constantly together. grandmother और खुशवंत सिंह, दे वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, दोनों साथ रहते थे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. अब यहाँ से एग्जाम में कभी कभी छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है. दैट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डेली रूटीन ऑफ खुशवंत सिंह विद हिज ग्रैंड मदर. खुशवंत सिंह का जो डेली रूटीन था ग्रैंड मदर के साथ में, वो क्या था? इन द विलेज, गाँव में क्या रूटीन हुआ करता था. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जगाती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर जो गाती थी वो काफ़ी मोनोटोनस कहते हैं बोरिंग, उनकी आवाज़ काफ़ी बोरिंग हुआ करती थी. वाइल शी बैथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. तो वो जोर जोर से प्रेयर गाया करती थी. द पर्पज ऑफ हर वाइल सिंगिंग द प्रेयर लाउडली वॉज दैट शी वांटेड खुशवंत सिंह आल्सो टू लिसन टू दैट प्रेयर एंड लर्न दैट प्रेयर. But Khushwant Singh found it very boring, and he listened because he loved her voice. वो सुनते इसलिए थे क्योंकि उनको उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी. But never bothered to learn it. लेकिन कभी सीखने की उनकी इच्छा नहीं हुई. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर अगला स्टेप क्या हुआ करता था? वुडन स्लेट लेकर आती थी. फैच कहते हैं ब्रिंग को, लाती थी, जो उन्होंने पहले धोई हुई होती थी. फिर उसके बाद में येलो चॉक भी होती थी उसके साथ में. टाइनी मीन्स स्मॉल. अर्दन इंक पॉट, अर्दन मीन्स मेड ऑफ जैसे आप कहते हैं मिट्टी से बना हुआ. इंक पॉट मिट्टी से बना हुआ था. और रेड पेन, ये सब इकट्ठा करके बंडल में बांध लिया जाता और फिर मुझे दे दिया जाता था. तो उस समय कोई बैग्स वैग का चलन नहीं था, खाली इस तरह से कपड़े की पोटली में बांध के ये सब चीज़ें दी जाती थी. सो काफ़ी पुरानी बात है ये. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. इसके बाद में ब्रेकफास्ट होता था. ब्रेकफास्ट किसका? थिक, मोटी, स्टेल मीन्स बासी, चपाती, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और थोड़ी सी शुगर, ये उनका नाश्ता हुआ करता था. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ में बहुत सारी बासी चपातीज लेकर चलती थी गांव के डॉग्स के लिए. इट मीन्स टू से हियर इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट द ग्रैंड मदर loved her grandson very much, and she also was fond of animals. उन्हें एनिमल्स का भी बहुत शौक था, बिकॉज शी यूज टू फीड विलेज डॉग्स एवरी डे. तो एक तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह इन विलेज. और सेकंड क्वेश्चन आता है कि why did the grandmother sing the morning prayer loudly and how did Khushwant Singh react to that. तो आपको इसमें लिखना है the grandmother sang morning prayer loudly because she wanted Khushwant Singh to learn it, and as far as the reaction of Khushwant Singh was concerned, he listened the prayer because he loved her voice but never wanted to learn it. और इसमें फिर अगला क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि
हाँ बस ये दो क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं. चलिए आगे चलते हैं. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी. अब ये पहला ही क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है. वाई डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू स्कूल विद हिम? इट वॉज बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल टेम्पल से अटैच था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट. प्रीस्ट हमें यानी यहाँ का पुजारी अल्फ़ाबेट सिखाता, मॉर्निंग प्रेयर सिखाता. वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat beside reading the scriptures. Scriptures refer to religious books. ये scriptures word जो है religious books को रेफर करता है. तो सारे बच्चे वरांडा में अल्फ़ाबेट वगैरह गाते, प्रेयर गाते कॉरस में, जबकि ग्रैंडमदर एक तरफ बैठ के अपनी स्क्रिप्चर्स यानी रिलीजियस बुक्स पढ़ा करती. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Growling means barking और fighting एक दूसरे से लड़ते थे dogs, क्योंकि किसके लिए? चपाती के लिए लड़ा करते थे. So this was their daily routine. तो आपको इन दोनों चीज़ों को इसमें मेंशन करना पड़ेगा if the daily routine of Khushwant Singh and his grandmother is asked. Okay, next. When my parents were comfortably settled in the city, they were comfortably settled in the city, they sent for us. Sent for us का मतलब बुलाना. Sent for एक phrasal verb है. Sent for and sent for. Third form sent for होती है. That was a turning point in our friendship. अब एक और क्वेश्चन पुट अप हो जाता है यहाँ पे, एक ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन. What was the turning point in the friendship of the writer and the grandmother, and how did it affect their life? ये important question है कि उनकी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट कब आया और इसने उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया. कैसे अफेक्ट किया? They were called to the city. उन्हें सिटी में बुला लिया गया. Although we shared the same room, they lived in the same room, but my grandmother no longer came to school with me. Why did the grandmother not come? Because he used to go to an English school in a motor bus, because previously they used to go on foot, but because he read in an English school, that's why he used to go on in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. Means dogs were replaced by sparrows. Previously she used to feed dogs, but now she was feeding sparrows. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते गए हम आपस में एक दूसरे से बहुत कम मिलते, एक ही घर में रहते थे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ समय के लिए तो उन्होंने मुझे जगाना और मुझे स्कूल के लिए रेडी करना जारी रखा. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी and what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो जैसे कि हर पेरेंट्स पूछते हैं अपने बच्चों से कि स्कूल में आज क्या सीखा, तो ग्रैंडमदर आल्सो यूज्ड टू आस्क. ग्रैंडमदर भी पूछती थी और वो उनको फिर इंग्लिश वर्ड्स और साइंस के बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटी ये आप जानते ही, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड बीइंग राउंड ये भी आप जानते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताते थे. दिस मेड हर अनहैप्पी. नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडमदर that she was unhappy that English and science was being taught in the school. She could not help with me my lesson. तो वो मुझे अपने lessons तो पढ़ा नहीं सकती थी because she was illiterate, क्योंकि वो illiterate थी. She did not believe in the things they taught at the English school. और इंग्लिश स्कूल में जो बातें पढ़ाई जाती थी साइंस और इंग्लिश, शी डिड नॉट बिलीव, शी डिड नॉट लाइक दैट एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. तो हर ऑब्जेक्शन वाज दैट द स्कूल्स वर नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन मैंने ऐसा भी अनाउंस सुना, मतलब मैंने घर पे बताया खुशवंत सिंह ने कि दे वर बीइंग गिवन द लेसन्स ऑफ म्यूजिक, कि उन्हें म्यूजिक के बारे में जानकारी दी जाएगी. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. ल्यूड मीन्स समथिंग एब्सर्ड, समथिंग फिल्दी, समथिंग डर्टी. म्यूजिक के बारे में उनके विचार अच्छे नहीं थे बिकॉज शी यूज्ड टू थिंक दैट इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेडलॉट्स एंड बैगर्स. उन्हें लगता था कि ये हेडलॉट्स और बैगर्स की मोनोपोली है. हेडलॉट्स कहते हैं दोज विमेन हु आर द सेक्स वर्कर्स. जो सेक्स वर्कर्स होती हैं उनको हेडलॉट्स बोला जाता है. तो उसे लगता था कि ये जो म्यूज़िक है ये सिर्फ हेडलॉट्स और बैगर्स के लिए है, नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, और ये जेंटल पर्सनस के लिए नहीं है. लुक एट द चेंजिंग सोशल वैल्यूज़. सोशल वैल्यूज़ जो चेंज हुई हैं उनकी तरफ देखिए. प्रीवियसली व्हाट यूज्ड टू पीपल डू, पीपल हैड अ वेरी बैड थिंकिंग अबाउट म्यूजिक, बट नाउ इट इज़
म्यूजिक में लोग अपना करियर बना रहे हैं, इंडियन आइडल चला रहे हैं, सो पीपल आर मेकिंग देयर एल्बम्स, सो social values are changing. She said nothing but her silence meant disapproval. उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसकी साइलेंस का मतलब एक ही था कि वो उसे नापसंद करती थी म्यूजिक जैसी चीज को. She rarely talked to me after that. So all these things which were very disturbing for her, this increased the distance between Khushwant Singh and the grandmother. When I went up to university, जब वो यूनिवर्सिटी में चले गए, कॉलेज में, I was given a room of my own, और मुझे अपना एक अलग कमरा दे दिया गया. तो इसका मतलब जो पहले प्रीवियसली दे वर शेयरिंग द सेम रूम्स, एक ही कमरे में रह रहे थे और फिर भी बहुत कम बात करते थे, अब तो बिल्कुल अलग कमरा मिल गया था. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड. स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन. ये कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप. व्हाट वाज दिस कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप? दिस कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज दे वर शेयरिंग द सेम रूम. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन. सेक्लूजन कहते हैं सेपरेशन. मेरी ग्रैंडमदर ने इस सेपरेशन को विद रेजिग्नेशन का मतलब कंप्लीट सरेंडरिंग, उन्होंने सरेंडर कर दिया और इस सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. नाउ शी वाज कंप्लीटली अलोन. हाउ डिड शी स्पेंड हर टाइम? तो कैसे वो अपना समय बिताती थी? वो स्पिनिंग व्हील चलाती थी सनराइज से सनसेट तक. स्पिनिंग व्हील का मतलब चरखा, और सनराइज से सनसेट तक वो केवल स्पिनिंग करती थी और प्रेयर्स रिसाइट करती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज. और आफ्टरनून में केवल वो स्पैरोज को फीड करती थी. वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चैरोपिंग्स. जब वो वरांडा में बैठती, ब्रेड को, रोटी को छोटे छोटे भागों टुकड़ों में तोड़ती, तो बहुत सारे सैकड़ों छोटे छोटे बर्ड्स उनके आसपास इकट्ठे हो जाते. वेरिटेबल मीन्स समथिंग वेरी इम्प्रेसिव. बैडलेम मीन्स मैडनेस, पागलपन. ऑफ चैरोपिंग्स का मतलब चहचहाट, यानी जो पक्षियों की जो चहचहाट थी वो चारों तरफ, जब पक्षी इकट्ठे हो जाया करते थे तो उनके चारों तरफ इस तरह से ची ची की आवाज़ें निकालते थे. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स. पर्च का मतलब सिट होता है, बैठना. तो ये दिखाता है कि हाउ मच द बर्ड्स बिलीव्ड ऑन हर, कितना बर्ड्स उसको प्यार करते थे और कितना उन पर विश्वास करते थे. सम इवन सेट ऑन हर हेड. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैट हवे. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. सो शी हैड ए वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स. दिस आल्सो वी कैन राइट इन द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंडमदर. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने further studies के लिए abroad जाने का decision लिया, I was sure my grandmother would be very upset. I would be away for 5 years and at her age no one could never tell. मुझे लगा कि ग्रैंडमदर बहुत अपसेट हो जाएंगी क्योंकि I was going to be away for 5 years, 5 साल तक रहूँगा नहीं और उनकी उम्र में कोई नहीं बता सकता कि when she would die, वो कब मर जाएंगी. But grandmother could, लेकिन ग्रैंडमदर ने इस तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं दी. She was never upset. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. इसका मतलब मेंटली वो औरत जो थी, ग्रैंडमदर थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी. And she knew very well that she was going to survive for those 5 years. और वो जानती थी कि वो अगले 5 साल जिंदा रहेंगी. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. Cherished का मतलब desired and moist कहते हैं, इसी moist से बनता moisture. Moisture इसी से बनता, moist का मतलब होता है गीला, imprint. So this was the reaction. यहाँ से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि how did the grandmother react when the author decided to go abroad for further studies. So you will be writing all about that. She was not sentimental, she was not upset, and she knew very well that for next 5 years she was going to survive. Her lips were moving in prayer, her mind was lost in prayer, and silently she kissed her forehead. This was the last physical contact between them. But that was not so. After 5 years I came back home. 5 साल पूरे हो गए, वापस आ गया खुशवंत सिंह, and was met her by at the station. Grandmother was again at the station to receive him. She did not look a day older. एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिख रही थी, वैसी की वैसी थी जैसी पहले थी. She still had no time for words. अभी भी वर्ड्स के लिए टाइम नहीं था. And while she clasped me in her arms,
क्लैस्प, क्लैस्प का मतलब होता है एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अभी भी वो प्रेयर बोल रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। यहाँ तक कि पहले दिन, मेरा जो अराइवल था उसके पहले दिन भी सबसे अच्छे मोमेंट्स उनके वही स्पैरोज के साथ में बिताए उन्होंने। इट मीन्स टू से हर डेली रूटीन वॉज फिक्स्ड एंड देयर वॉज नो कंप्रोमाइज विद दैट, उसके साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं था, उनका रूटीन जो था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया था। एंड शी वॉज फीडिंग द बर्ड्स एंड बिजी विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स। फ्रिवोलस कहते हैं आर्टिफिशियल और रिब्यूक्स कहते हैं डांट। ये आर्टिफिशियल रिब्यूक्स क्या होती हैं, जनरली कभी कभी आपने देखा होगा हम छोटे बच्चों को कभी ऐसे ही दिखाने के लिए डांटते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम जो है उनको डांटना नहीं चाहते हैं, उसको सिर्फ रुलाने के लिए डांटते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रिवोलस रिब्यूक्स, मीन्स रिब्यूक्स विच आर नॉट मेंट फॉर रिब्यूकिंग एक्चुअली, दे आर नॉट ड्रिवन बाय एंगर, एंगर से ड्रिवन नहीं होते हैं, दे आर जस्ट ड्रिवन बाय फन। ओके, द सेम इवनिंग, उसी शाम व्हेन खुशवंत सिंह रिटर्न्ड बैक, अ चेंज केम ओवर हर, एक चेंज आया उनमें। व्हाट वाज द चेंज? शी डिड नॉट प्रे, प्रेयर उन्होंने नहीं की। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोसियों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना सा ढोलक उठाया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम। डिलेपिडेटेड कहते हैं वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड, बड़ा ओल्ड और आउटडेटेड ढोलक था। उसकी सैगिंग स्किन, सैगिंग स्किन का मतलब ढीली स्किन, यानी उसका जो कैनवास था वो पूरी तरह से लटक गया था, उसी को जोर जोर से बजाया उन्होंने। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो गाने गा रही थी, और गाने भी किसके, यानी गीत गा रही थी। गाने का जो थीम था होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स यानी जब सेना के जो योद्धा होते हैं वो घर पर लौट कर आ जाते हैं। इसका कोई आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, इट वॉज जस्ट एक थीम था गाने का। आप ऐसा मत लिख दीजिएगा कैरेक्टर स्केच में कि ग्रैंडमदर लाइक्ड आर्मी वेरी मच, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स ओवर टेंशन। वी हैड टू परसुएड हर, मोटिवेट हर, हमें उन्हें रोकना पड़ा। टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ताकि उनको कहीं टेंशन ना हो जाए, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ ना जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। ये पहली बार था कि उन्होंने अपना रूटीन तोड़ा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, और ये माइल्ड फीवर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने हमें बताया कि ये चला जाएगा। कौन चला जाएगा? फीवर वुड गो, ग्रैंडमदर नहीं चली जाएगी, फीवर, इट वुड गो। इट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंग, और ऑब्वियसली इट यहाँ पर किसको रेफर कर रहा? फीवर को। बट माई ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर कुछ अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बता दिया कि उनका अंत आ चुका है। इट मीन्स टू से हाउ एग्जैक्ट द लेडी इज, इसको कहते हैं इंट्यूशन, यानी उनको इंट्यूशन हो चुका था कि उनका एंड पास ही था। इंट्यूशन की स्पेलिंग INN और ट्यूशन TUITION। एक तो आप ट्यूशन लेते हैं, ट्यूशन जब पढ़ते हैं आप बाहर किसी और से ट्यूशन पढ़ते हैं। इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब अंदर ही अंदर आपको आपका मन जो है वो आपको ट्यूशन देता है, तो उसी को कहते हैं इंट्यूशन, यानी अंदर ही अंदर आभास हो जाना, अंदर ही अंदर ऐसा एहसास हो जाना, पूर्वाभास जिसे बोलते हैं। उनको लग गया कि इनकी मौत नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने ऐसा जब कहा तो उनकी ज़िंदगी के कुछ ही घंटे पहले उन्होंने ऐसे कहा जब उन्होंने प्रेयर छोड़ दी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और उन्होंने उसके बाद में तुरंत बाद में शी वॉज बिजी इन प्रेइंग, सोते सोते ही वो प्रेयर में बिजी हो गई और उन्होंने हमसे बात नहीं की। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। और हम तो उन्हें देखते ही रह गए, और लेकिन उनके लिप्स ने मूव करना बंद कर दिया। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और माला उनके उंगलियों से गिर गई। अ पीसफुल पैलर, पैलर कहते हैं पेलनेस, वीकनेस, एक बड़ी शांत वीकनेस उनके चेहरे पर थी। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और ग्रैंडमदर डेड थी। अब उसके बाद में यहाँ से लास्ट पैराग्राफ में से क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द स्पैरोज पे होमेज टू द ग्रैंडमदर। स्पैरोज ने ग्रैंडमदर को कैसे होमेज पे किया?
तो वी लिफ्टेड हर ऑफ ऑन द बेड एंड एज कस्टमरी मीन्स एज द ट्रेडिशन इज लेड हर ऑन द ग्राउंड पर उनको लिटा दिया, कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड कहते हैं कफन को, लाल कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल कहते हैं क्रीमेशन को, और उनके क्रीमेशन के लिए अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर कहते हैं अर्थी को, जिस पर डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूर्यास्त होने को था और कमरे के अंदर रोशनी थी, गोल्डन लाइट ये सनलाइट ही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम वहीं कोर्टयार्ड में रुके हुए थे। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। पूरे वरांडा में और कमरे के अंदर जहाँ पर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वहाँ बहुत सारे स्पैरोज इकट्ठा थे। देयर वॉज नो चर्पिंग बट वट वॉज द चेंज? प्रीवियसली तो वो जैसे बेडलाम ऑफ चर्पिंग्स हुआ करता था, लेकिन आज कोई चर्पिंग नहीं था, कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स मीन्स पीसेस, द वे माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू, एंड थ्रू इट टू देम, बट द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने उस ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं। When we carried my grandmother's corpse कहते हैं डेड बॉडी को, they flew away quietly, ये चुपचाप वहाँ से उड़ गए और उन्होंने उनको ग्रेन्स को हाथ भी नहीं लगाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर ने वही रोटी के टुकड़े डस्टबिन में डाले। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द स्पैरोज पे होमेज टू द ग्रैंडमदर। होमेज की स्पेलिंग होती है HOMAGE, होमेज मीन्स श्रद्धांजलि देना। So this was all about this lesson. The name of the lesson is The Portrait of a Lady. If you find any difficulty in understanding in any lesson, please put a comment in the comment box. I definitely will be helping for the same. Thank you.